Good morning, everyone. In our previous video, we had discussed about the complexes related to titanium, scandium, vanadium, and today we are going to discuss about the compounds formed by the element iron. Firstly, we have to know that iron is denoted as symbol Fe, and its electronic configuration is argon 3d6 4s2. Like other elements, it also exists in the form of their ores. The ores are hematite, magnetite, limonite, and siderite. Iron can be prepared from its oxide, hematite ore, by the reduction of carbon in the blast furnace. The possible oxidation states, although we are able to know that due to presence of d orbital, there are variety of oxidation states are possible in these transition elements. But however, the iron 2 positive and iron 3 positive is well known among all the possible oxidation states. There are some, so we discuss only about these in majority, while the other forms which have lower oxidation states or higher oxidation states which are possible in iron, we discuss their only main compounds. Firstly, we know that the iron 2 is more stable and it exists in aqueous solution. Iron 3 positive is slightly oxidizing and iron 2, but iron 2 and iron 3 states are much more closer in their stability. Now we are going to discuss about the properties which are their physical properties. Pure iron is a soft silvery metal having melting point of 15-28 degrees Celsius. It has strong magnetic properties. The reason of magnetic properties is the presence of unpaired electrons. As we all know that 3d6 electrons are present. That means 5, that is 4 unpaired electrons, which leads to their paramagnetic character, or we known as iron is behave as ferromagnetic material. Whenever we apply magnetic field, it behave as a magnet. Iron exists in 3 commercial varieties which put to different industrial, namely as cast iron, wrought iron and steel. However, we know that the cast iron, wrought iron and steel, in which we are vary the content of carbon in order to create these kind of industrial uses. For suppose in steel we are doing the doping of 0.5 to 15% carbon in order to change their form and make it as a steel. So iron is very reactive metal. When exposed to air or moisture, it leads to the phenomena of corrosion, जिसे हम क्या बोलते हैं, rusting. Finely divided iron burns in air and oxygen, forming corresponding oxide. Iron react with the steam at very high temperature. अगर आप सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तब भी आपके पास डिजायर्ड ऑक्साइड होगा, बट द कंडीशन इज यू हैव टू प्रोवाइड द हाई टेम्परेचर्स. द आयरन डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल. जब भी HCl में डिजॉल्व करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड मिलेगा. अगर आप उसे सल्फेट में डिजॉल्व करोगे तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, सल्फेट मिलेगा. द आयरन डिस्प्लेसेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सच एज कॉपर और सिल्वर फ्रॉम देयर सॉल्ट. जब भी आप आयरन की रिएक्शन क्या करते हो, कॉपर के साथ करवाते हो, तो इट चेंज दी कॉपर सल्फेट. दैट इज कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 पॉजिटिव, उसे किस स्टेट में चेंज कर दिया, एलिमेंटल. दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर. तो आप इसे एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हो इफ़ इन केस वी एक्सट्रैक्ट द प्योर कॉपर फ्रॉम द मेटल. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ आयरन. व्हेन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन एंड रेड पर्पल सोल्यूशन ऑफ आयरन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी फॉर्म. तो हमारे पास जो जब भी आप एल्कलाइन सोल्यूशन को फेरिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, तो हमारे पास जो रेड पर्पल सोल्यूशन होता है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4. हाउएवर +4 इज नॉट दैट मच स्टेबल, सो इट रेडली चेंजेस इनटू Fe3 पॉजिटिव. फेरेटाइन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन परमैग्नेटाइन. It has tetrahedral geometry and its potassium salt is isomorphous with the potassium chromate और पोटाशियम सल्फेट. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है आयरन के ऑक्सलेट का,
आयरन के ऑक्साइड का, सॉरी। तो ये स्ट्रक्चर किसके साथ आइसोमर मतलब मैच करता है, KMnK2Cr O4, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और हमारे पास मैच करता है सल्फेट के साथ। नाउ नेक्स्ट मूव टू आयरन 3 पॉजिटिव। अभी हमारे पास एज वी ओनली दीज आयरन इन दिस आयरन ओनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर प्रोमिडेंट। तो यहाँ पर हम क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फेरिक और फेरस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जब भी हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही, आउट ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हमारे पास 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऐसी हैं जो मेजॉरिटी में एग्जिस्ट कर रही हैं या जिनके कंपाउंड्स वेल नोन हैं, तब हम फेरस और फेरिक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि जब भी आप लो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 है तो उसे OUS के साथ डिनोट करोगे, और अगर आप हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसिडर कर रहे हो तो उसको इक के साथ डोनेट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन 3 पॉजिटिव का डिस्कशन। आयरन 3 पॉजिटिव इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन 3 पॉजिटिव के ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इसके सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फेरिक सॉल्ट्स। इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स और हैलाइड्स एक्सेप्ट आयरन आयोडाइड, क्योंकि हमें पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द हैलोजन सीरीज साइज गॉट इंक्रीज। तो हमारे पास हम जब भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो हमारे पास स्मॉल बॉन्ड, अगर मतलब दोनों एटम, सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम दोनों क्या हो, स्मॉल साइज़ के हों तो बॉन्ड स्टेबल होता है। अगर दोनों सेंट्रल एटम भी और सराउंडिंग एटम दोनों लार्ज साइज़ के हो तो बॉन्ड स्टेबल रहता है। तो दैट्स वाई मे बी द रीज़न इज़ दैट आयरन आयोडाइड इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इसके नाइट्रेट्स भी मिलते हैं। लेट्स डिस्कस विद द हैलाइड्स ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव। तो आयरन वी ऑलरेडी explain that the iron triiodide is not formed because iron 3 is very strong oxidizing agent and it reduces directly into corresponding to Fe2 salts में क्या हो जाता है, reduce हो जाता है। जब भी आयरन को हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये 2 पॉजिटिव के और आयोडीन क्या कर देता है, लिबरेट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास Fe3 हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द direct action of halogen on iron. Among these FeCl3 is important compound. FeCl3 important है क्योंकि वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एज वी ऑलरेडी नो दैट यहाँ पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन 2, और ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड को हमने एरो के साथ शो नहीं किया क्योंकि ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आयरन ने डोनेट किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अभी मेटल ने इस आयरन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने डोनेट किए हैं, क्लोरीन ने। दैट्स वाई एरो का डायरेक्शन कैसा है, क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन किससे कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, आयरन को। सिमिलर वे में जो दूसरा क्लोरीन होगा वो इसके साथ सॉलिड बॉन्ड यानी कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसके साथ क्या फॉर्म करेगा, डेटिव बॉन्ड। Iron 3 on account of its small size and high charge density readily get hydrolyzed by giving H positive ions। तो इसमें क्या है, ये एसिड की तरह बिहेव करता है इन वाटर। अभी इसका डिफरेंट pH पर कैसा बिहेवियर है वो डिस्कस कर रहे हैं। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, दैट इज़ उसका pH 7 होता है। जब भी आप वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो तो ये H पॉजिटिव लिबरेट कर देता है, दैट मीन्स ये इटसेल्फ कैसे बिहेव करने लग गया, एसिड की तरह। नेक्स्ट है हमारे पास अगर आप pH 4 to 5 रखते हो दैट मीन्स आपने उसे एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड कर दिया। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये एक डाइमर की फॉर्मेशन करेगा, जिसका ब्राउनिश सॉलिड की तरह होगा इसका कलर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर कोई भी लीव नहीं करना। नेक्स्ट है इसका डाइमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो हमारे पास जो OH हैं ये ब्रिजिंग में है, दैट इज दे आर इन म्यू फॉर्म। तो जब भी आप इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करोगे पहले इस पोर्शन से स्टार्ट करोगे, टेट्रा एक्वा आयरन, फिर उसके बाद म्यू डाईहाइड्रोक्सो, उसके बाद नेक्स्ट फिर से टेट्रा एक्वा आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे इन ऑर्डर टू गिव द नेम अंडर दिस। नेक्स्ट है हमारे पास अगर आप pH क्या करते हो, हाई कर देते हो, दैट मीन्स आप बेस की तरफ मूव कर रहे हो, तो हमारे पास रेडिश ब्राउन जेलेटिनस PPT फॉर्म होंगे, किसके, आयरन के ऑक्साइड के। और ये डॉट के साथ में वाटर डालने का पर्पस ये है, जो हमारा आयरन ऑक्साइड होगा
वो हमारे सेंटर में एक जैसे बॉल की तरह, और उसे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या किए हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे ही शो करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने इन्हें सराउंड किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन 3 पॉजिटिव हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड it has preference for forming high complexes with the ligands which coordinate through oxygen atom। हमें पता है कि जितना ज़्यादा आयरन 3 पॉजिटिव का मतलब है उतना ज़्यादा ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। दैट मीन्स इसकी टेंडेंसी किसके साथ ज्वाइन होने की ज़्यादा रहेगी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। दैट मीन्स ये अपनी कॉम्प्लेक्सेस में, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे लिगेंड्स को के लिए एफिनिटी ज़्यादा शो करता है जिसमें कौन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन किसी ना किसी फॉर्म में इन्वॉल्व है। जैसे आयरन का यहाँ पर फॉस्फेट है, ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होगी ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर हाइपोफॉस्फेट है तो यहाँ पर भी अगेन ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होगी। ऑक्सलेट है तो हमें ऑक्सलेट का पता है COH है ना, तो इसका मतलब अगर हमारे H चले गए तो फिर से डोनर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। टाइल एसीटोनेटो में भी CH3COO नेगेटिव, तो उसमें भी हमारे पास जो हमारा लिगेंड है वो क्या है, ऑक्सीजन ही है, डोनर एटम। तो इस तरह ये ऐसे लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है जहाँ पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो एज अ डोनर एटम। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई ऑक्सलेटो कॉम्प्लेक्स हो गए, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सासाइनेट का कॉम्प्लेक्स है। ये भी रादर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि साइनाइड क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। दैट मीन्स यहाँ पर बैक डोनेशन की वजह से पाई बॉन्ड करेक्टर होगा, जिस वजह से एक समवट ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। इन स्ट्रक्चर्स का एक्सप्लेनेशन क्या है, हमारे पास जो एन मिथाइल का हमने सिलेन यूज़ किया हुआ है, एन मिथाइल ट्राई एन मिथाइल सिलेन। तो हमारे पास जो सिलिकन है, सिलिकन क्या करेगा, इसमें इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है। प्लेनर होने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंडेड पाई बॉन्डिंग हो रही है। एक्सटेंडिंग पाई बॉन्डिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारा सिलिकेट्स है उसके पास 3D ऑर्बिटल भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉन्स भी, जिस वजह से पहले उसने नाइट्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, फिर से इन टर्न वो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर इसे मैं इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे एक्सपैंड करूं तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पर आयरन के साथ नाइट्रोजन ने पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो डोनेट करके क्या फॉर्म कर लिया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारा सिलिकन है, सिलिकन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ ज़्यादा उसने मूव की हुई है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अपने पास रखेगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इन टर्न किसको डोनेट होगी, आयरन को, क्योंकि आयरन क्या है, 3 पॉजिटिव की फॉर्म में है और ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो इंटर्न क्या शो कर रहा है, एक्सटेंडेड पाई बॉन्डिंग। हमेशा ऐसा नहीं होगा, जब भी बैक डोनेशन की बात होती है दैट मीन्स पहले सिग्मा बॉन्ड इसने फॉर्म किया बाय डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स टू दिस एलिमेंट। लेकिन अगर बैक डोनेशन होता है उसका मतलब होता है कि आयरन ने डोनेट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने लिगेंड को। अभी यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्ड है, एक्सटेंडेड का मतलब क्या है कि पहले भी नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस आयरन को डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, अब फिर से सिलिकॉन ने अपने जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो भी नाइट्रोजन के थ्रू किसके साथ शेयर की है, आयरन के साथ। दैट्स व्हाई वी मेंशन इट एज एक्सटेंडेड। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, आयरन का नाइट्रेट के साथ स्ट्रक्चर है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके ड्रॉ किया हुआ है। इसमें डोनर एटम नो डाउट ऑक्सीजन ही है, लेकिन एट अ टाइम दो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। दैट इज़ नाइट्रेट कभी कभी मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी बाइडेंटेट की तरह भी। तो यहाँ पर नाइट्रेट का एक्सेप्शनल केस क्या है, आयरन के साथ वो क्या बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट की तरह। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, दैट ज्योमेट्री इज डोडेकाहेड्रल। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन 2 के कंपाउंड्स। आयरन 2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज सॉल्ट्स आर कॉमनली कॉल्ड फेरस सॉल्ट। दैट्स वाई आई एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन फेरस और फेरिक।
तो हमारे पास जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें क्या करता है, आयरन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में। तो आयरन 3 पॉजिटिव, ऐसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, आयरन 3 पॉजिटिव को हम चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करेंगे आयरन 2 पॉजिटिव में। आयरन 2 पॉजिटिव ज़्यादातर रिएक्शन जब भी आयरन 2 पॉजिटिव की इन्वॉल्व होगी तो उसमें ऑक्सीजन और एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड होगा इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये दो एजेंट्स हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी टेंडेंसी हो जाती है कि ये रिड्यूस कर देता है SN4 पॉजिटिव को SN2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब भी आप इस रिएक्शन, ये हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन हो गया जैसे हमने KMnO4 में किया था। एक बार स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख लिया, अब आप जिस भी कंपाउंड को रिड्यूस कर रहे हो या ऑक्सीडाइज कर रहे हो उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज लिखा, और बाद में क्या करोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड करके क्या लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन। तो सिमिलर वे में हमारा मर्क्यूरिक को हम क्या कर रहे हैं, मर्क्यूरस में चेंज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हलाइड्स ऑफ आयरन 2। आयरन 2 के जो हलाइड्स हैं वो किस फॉर्म में है, उनके साथ वाटर भी हो सकता है या सिंपल हलाइड्स भी हो सकते हैं। अब आप इसे कैसे प्रिपेयर करोगे, आयरन को सॉलिड फॉर्म में लिया, तो उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, आयरन के क्लोराइड में चेंज कर दिया। जब उससे वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमारे पास डिज़ायर्ड कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। इसका कलर ग्रीन है। नेक्स्ट है हमारे पास एनहाइड्रस आयरन 2 हलाइड्स कंबाइन विद अमोनिया। जब भी आप इसका एनहाइड्रस फॉर्म हलाइड का, इस हलाइड का वाटर के साथ रिएक्ट किए बिना फॉर्म को आप फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमारे पास हेक्सा अमोनियम का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है वाटर के अंदर। तो जैसे ही आप इसे वाटर में पोर करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अमोनिया रिलीज हो जाएगी और वाटर इससे सब्स्टिट्यूट, जिसे हम बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास आयरन का 2 पॉजिटिव का फॉर्म चेंज होगा वो रेडली किस में चेंज होगा, आयरन 3 पॉजिटिव में। द मोस्ट फेमस कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन 2 इज़ हीम। अभी इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन कैरियर है हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स की तरफ जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, तो उस यूनिट में भी आयरन 2 पॉजिटिव क्या है, सेंट्रल मेटल एटम की तरह है। इसलिए इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की ज़्यादा वेल नोन है। आयरन 2 पॉजिटिव कंबाइन विद वाटर एंड नाइट्रोसिल टू गिव ब्राउन रिंग। जब भी आप रिएक्शन करते हो इन ऑर्डर टू फॉर्म द ब्राउन रिंग, तो यहाँ पर जब भी ब्राउन रिंग फॉर्म होती है तो उसका रीज़न क्या है, आयरन 2 पॉजिटिव के साथ कौन बॉन्डिंग करता है, वाटर और नाइट्रोसिल। नेक्स्ट है हमारे पास Fe2 पॉजिटिव जब कंबाइन करता है साइनाइड और नाइट्रोसिल के साथ, तब हमारे पास मिलता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू डू क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फ़र। जब भी आप एसिड और बेस रेडिकल का डिटेक्शन करते हो तो उसमें सल्फ़र अगर प्रेजेंट है या नहीं तो आप चेक करते हो बाय यूजिंग ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन। अगर हमारे पास पर्पल या वॉयलेट कलर हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर शो होता है, दैट मीन्स सल्फर इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, 5 साइनाइड हैं और एक नाइट्रोसिल है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, और ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट जो ये रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट या डिफरेंट है इसमें कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड बिहेव कर, जैसे ये रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन में आयरन की दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इसके कलर का चेंज होगा अगर इसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एट अ टाइम प्राइमरी वैलेंसी की तरह एक्ट करेगा। जैसे सपोज आप पोटाशियम फेरोसाइनाइड का सोल्यूशन कंसिडर करते हो, उससे फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, आयरन 3 पॉजिटिव। तो उस टाइम इस सोल्यूशन का कलर क्या होगा, पर्शियन ब्लू। अगर आप फेरिसाइनाइड, पोटाशियम फेरिक साइनाइड लेते हो, तब आप उसे आयरन 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, 2 पॉजिटिव। तो उस टाइम इस सोल्यूशन का कलर क्या होगा, टर्न ब्लू कलर। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव स्टेट इन देयर प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि हमें पता है सोल्यूशन के अंदर अगर कंडक्टेंस भी चेक करना हो कि सोल्यूशन के अंदर अगर हमारे पास पर्शियन ब्लू कलर हुआ, दैट मीन्स कंडक्टेंस किसके आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, आयरन 3 पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्ड, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। जैसे ही आप उसे वाटर में पोर करोगे वो सेपरेट हो जाएगी।
उसके कॉरेस्पॉन्ड हम कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलर वे में टर्नबुल ब्लू कलर क्या वो सेपरेट आयरन 2 पॉजिटिव को सेपरेट आउट करने के लिए जब आप उससे 3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में पोर करोगे तो हमारे पास 2 पॉजिटिव प्राइमरी वैलेंसी है, दैट मीन्स टर्नबुल ब्लू कलर होगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग कंडक्टेंस किसके लिए होगी? आयरन 2 पॉजिटिव के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो पर्शियन ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक एससीसी स्ट्रक्चर है। तो इसमें आयरन मैंने स्ट्रक्चर को शो करने के लिए कैसे यूज़ किया है, इसमें आयरन जो मैंने बिल्कुल डार्क किए हुए हैं सर्कल वो क्या है, आयरन 3 पॉजिटिव हैं, और जो मैंने ओपन रखे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, आयरन 2, शेडेड नहीं है, विदाउट शेडिंग है, सर्कल्स हैं। जिसे मैंने रेड कलर के क्रॉस के साथ शो किया हुआ है वो साइनाइड है, और जिसे मैंने पोटाशियम सर्कल इन द सेंटर पोटाशियम, तो वो पोटाशियम आयन है। तो हमारे पास नेक्स्ट है, इसे क्यूब में अरेंज करेंगे। इस क्यूब में क्या है, हमारे पास सारे कॉर्नर्स पर क्या होंगे, आयरन होंगे। वो मैटर नहीं करता आयरन 2 पॉजिटिव है या 3, कॉर्नर्स किसके लिए होंगे, आयरन के लिए होंगे। और जो हमारे एज सेंटर होंगे, दैट मीन्स इन दोनों को जो ज्वाइन करती हुई एज है उसके सेंटर पर जो एटम होंगे वो कौन से होंगे, साइनाइड्स होंगे। और हमारे पास जो हाफ स्पेस, उसका ऊपर का हाफ स्पेस और हाफ स्पेस अगर आप क्यूब को डिवाइड करोगे तो नीचे वाली हाफ स्पेस में कौन होगा, पोटेशियम होगा। तो इस वे में आप इस स्ट्रक्चर को इलेबोरेट कर सकते हो। ये एक यूनिट सेल को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर आप यूनिट सेल को लेटिक्स में चेंज करोगे तो यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द क्यूबिक सेंटर। तो मैंने उसी तरह नोटेशन देने का ट्राई किया है कि हाफ ऑफ जो क्यूबिक सेंटर है उसके नीचे से होगा आयरन, पोटेशियम। नेक्स्ट है हमारे पास फेरोसिन के जो कंपाउंड सैंडविच कंपाउंड है उसमें भी आयरन जो प्रेजेंट है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसे मैं OMC से डिनोट कर रही हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स ने आयरन 2 पॉजिटिव की वैलेंसी के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। तो मैंने इसे स्ट्रक्चर, इसे सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं, फेरोसिन भी। और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 18। दैट्स इलेक्ट्रॉन काउंट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो आई एम जस्ट मेंशन इट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो अभी यहाँ पर हम लास्ट पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं एक्सेप्ट आयरन 2 और 3 के, तो उनको एक अलग से आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं। आयरन एग्जिस्ट करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कहाँ पर, जब भी हमारे पास कार्बोनिल इंट्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, -2। कार्बोनिल पर फॉर्मल चार्ज 0 होता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्ड जो भी चार्ज हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर मेंशन है वो क्या होगा, आयरन का ही चार्ज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल लिगेंड, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी चार्ज हमारा कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा वो आयरन का चार्ज होगा। These carbonyl ions react with the aqueous alkali or water to form कार्बोनाइलेट आयन। ये फर्दर इनकी प्रॉपर्टी बताई हुई है कि जैसे भी हमारे पास जो कार्बोनिल का न्यूट्रल वैलेंसी है, जब भी आप इसे बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मेटल कार्बोनाइलेट आयन की। दैट इज़ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी होगा और मेटल भी है। नेक्स्ट कार्बोनाइलेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड भी है। नेक्स्ट है हमारे पास जब भी आप इसे PF3 के साथ रिएक्ट करवाओगे, दिस इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये गैसेस है इसलिए ये रिएक्शन क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन 2 CO9 नाइट्रोसिल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आयरन CO2 NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। अभी हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ओवरऑल चल रही है तो हमारे पास ज़्यादातर ज्योमेट्री क्या है, आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, एक्सेप्ट आयरन 4, जिसमें हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। आयरन 4 2 नेगेटिव यूनिट्स का। नेक्स्ट है हमारे पास इस टॉपिक में हमारे पास क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, या कॉम्प्लेक्सेस भी दिए जा सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस है एग्जामिनर आपको कॉम्प्लेक्स बनाकर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करवाएगा। तो जब भी आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करोगे तो आप क्या किसका फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, मैं इसे इक्वेशन को सॉल्व कर देती हूँ। K4FeF6 का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रहा है, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3d6। 3d6 को आप एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करोगे।
और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4। तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है n×n+2। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 दैट इज 24 बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट्स हैं। तो इस वे में अगर आपको एग्जाम में आयंस पूछे हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से शुरू हो जाओगे, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स भी दिया है तो उसमें से पहले सेंट्रल लाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर फिर आगे मूव करो। तो सिर्फ ये डिफरेंस होगा अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिया होगा या सिंपल आयंस दिए होंगे। गिव द काउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन 2 और आयरन 3। तो इस क्वेश्चन में तो आपको कंप्लीट डिस्कशन देना होगा आयरन 2 और आयरन 3 के कॉम्प्लेक्सेस जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव कलर्ड होते हैं लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में, वाइल पोटाशियम इज नॉट कलर्ड। तो इसका भी आप आंसर कैसे करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के भी यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डी ट्रांजिशन मैंने एक्सप्लेन की थी कि ट्रांजिशन मेटल में कलर का रीज़न क्या है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर कोई करेक्टरिस्टिक कलर होगा कि, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेकंड रीज़न है कलर के लिए। लेकिन के पॉजिटिव का मतलब है वो आर्गन की कन्फिग्रेशन में आ गया, आर्गन का 18 हो जाएगा, 19 to 18। तो इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मोर ओवर वहाँ पर डी ट्रांजिशन, क्योंकि डी ऑर्बिटल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था पोटेशियम में, तो इसका मतलब वहाँ पर डी ट्रांजिशंस भी नहीं है। दैट्स वाई दिस आयन इज नॉट कलर्ड वाइल दीज बोथ आर colored. This is all about iron. In next video we are discuss some other elements and their related compounds. Thank you.